नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड ई 303 की ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड ई 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is estimating and costing? So estimating means to determine the quantities of various items required to execute a job or a project and to get the total cost of the execution. Means that किसी प्रोजेक्ट किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें जो रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ हमको पता होनी चाहिए, उनकी कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। उसको हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग? द पर्पज़ ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इज बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू जॉब, a new program or a new project, as per good management practices, it is very necessary to know the necessary material required and the cost to be incurred on it in the project, so that we can calculate the all our costs. We can analyze the all our required material with the help of estimating and costing. So hence it is very necessary to prepare complete project for the given program, because this project acts as guide in successful implementation of required program. So estimate is prepared for help in taking a right and definite decision while entering into a contract with any organization, industry or firm. In general, it can be enlisted under 4 headlines. These 4 headlines are: first is estimation of the quantities of material and the cost involved. Second is cost analysis. Third is maintaining neat and clean proper records. And fourth is provision of selling ads. Again, there are various steps to be taken for the estimations. These various steps are: first step is chalk out a list of item and quantities required. First we have to create the list of item and quantity is required. Second step is consult the rate catalogs for pricing the various items. हम इसके लिए मार्केट सर्वे कर सकते हैं, उसमें सभी डिफरेंट शॉप से या जो सेलिंग्स शॉप्स होती है उनसे कैटलॉग मंगा के उसकी प्राइस को हम कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड है असेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। मीन्स दैट हमको ये पता होना चाहिए कि पूरे काम के लिए हमको कितने लेबर या कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। सो कंप्लीट द जॉब एंड आफ्टर कंसल्टिंग द शेड्यूल ऑफ लेबर रेट्स ऐड द लेबर कॉस्ट टू द एस्टिमेट अंडर प्रिपरेशंस। मतलब लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करके हम पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज ऐड सुपरविजन चार्जेज एंड एग्जीक्यूटर्स प्रोफाइल। जैसे कोई प्रोजेक्ट के लिए बार बार सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, तो उसके चार्जेस और जो एग्जीक्यूटर्स प्रॉफिट के लिए जो चार्जेस होते हैं एडवर्टाइज़ के लिए और सेलिंग्स के लिए और भी अदर जो चार्जेस होते हैं उनको भी हम टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इज़
if in the case of government organization where the work is to be executed by contractor, the tenderer are floated only after correct specifying the description of each item to avoid many misunderstanding while executions. इसके अंदर जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके काम के लिए टेंडर होता है, उसके अंदर बहुत सारी फ्लोटिंग्स होती है, तो उसके मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए पहले से ही उसको डिस्क्रिप्शन उसका ज़रूरी होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट आर द डाटाज आर रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. द फर्स्ट इज full specifications of the building. In the specification of building we have to calculate the length, width and height of the building and the position of the building and positions of various doors and windows. Second, the type of wiring to be used, which type of wiring we are using in the building wiring, like we are using the concealed wiring, other conduit wiring, casing capping wiring, which kind of wiring we are going to use in the building. So we have to know about the type of wiring. Third is quality of material. This is the important point because the quality of material will affect directly to the cost of the project. In the market there are many items are available in different type of qualities, so quality should be greater. Fourth, complete schedule of the points to be wired up. तो हमारे पास में कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए, जो भी मटेरियल उसके अंदर लगेगा, जो भी वायरिंग जो भी उसके अंदर लगेगी, उसका शेड्यूल हमारे पास में कंप्लीट शेड्यूल फिक्स होना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्लान एंड सेक्शन मार्क्ड विद डिटेल्स. तो जो भी प्लान्स और जो सेक्शंस हमने जिसका लेआउट डिज़ाइन बनाया है उसकी मार्किंग होनी चाहिए डिटेल के साथ में, जैसे पोजीशन ऑफ मेन स्विच कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पे होगा और पोजीशंस ऑफ पावर सॉकेट्स कहाँ पे होंगे, वो हमारे प्लान के अंदर होने चाहिए. नेक्स्ट है कि what are the qualities of good estimator. First is he should have full practical experience and knowledge about preparing estimations. जो भी एस्टिमेटर है उसको उस काम के बारे में फुल प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और उसको मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए. तो जो सेकेंड पॉइंट है कि ही शुड हैव कंप्लीट एंड अप टू डेट नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट डिज़ाइन. तो ही शुड हैव कंप्लीट एंड अप टू डेट नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट डिज़ाइन. जो मार्केट के अंदर लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहे हैं उनके बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो नए डिज़ाइंस और जो अप टू डेट डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो उनके अकॉर्डिंग अपना काम को, अपने जॉब को एग्जीक्यूट कर सके. Now third quality is that he should have a good imagination and experimenting power. इसके अंदर जैसे कुछ नए डिज़ाइंस उसके दिमाग में आते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंटिंग, जैसे वो नए एक्सपेरिमेंट उस जॉब के साथ में करना चाहता है, तो वो पावर उसके पास में होनी चाहिए ताकि वो जो लेटेस्ट डिज़ाइन है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो मॉडिफिकेशन कर सके, जिससे जो लेटेस्ट डिज़ाइन है वो और इम्प्रूव हो सकते हैं. दैन फोर्थ क्वालिटी इज़ ही शुड बी एबल टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ लेटेस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल. क्योंकि जो भी आइटम्स रिक्वायर्ड हैं अपने जॉब के लिए, उन आइटम्स की जो प्राइस मार्केट में चल रही है उसका उसके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में मान लो उनकी प्राइस कम होती है, ज़्यादा होती है, तो वो उसको पता रहे कि ये जो सामान जो इसके अंदर लगेगा वो कितनी कॉस्ट का है, उससे उसकी कॉस्ट कितनी अफेक्ट होगी. एंड लास्ट पॉइंट इज़ वाइल एस्टिमेटिंग एनी प्रोजेक्ट ही शुड ऑलवेज कीप प्रोविज़न फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन एंड डाइवर्जेंस. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई जॉब है, कोई भी वायरिंग किसी बिल्डिंग की करनी है, तो उसको
उसके फ्यूचर एक्सटेंशन मान लो कि कुछ पार्ट बिल्डिंग का रह रहा है, वो उसको बढ़ाना चाहता है और उसमें जो डाइवर्जन्स होंगे या किसी पार्ट को हम एक अलग से सप्लाई देना चाहते हैं, उसके बारे में उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि फ्यूचर के बारे में उसके अंदर जो सारे प्रोविजंस हैं वो ओपन रखने चाहिए. Now there are some essential elements for estimating and costing. So before initializing any electrical project, the following facts related to estimate and costing should be known by the estimator while he prepares an estimate of the that project. So these essential elements are first of all full knowledge of the purchase system, बिकॉज परचेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो सामान बाहर से ख़रीदा जाता है वो बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका टेंडर सिस्टम होता है. परचेस सिस्टम के अंदर हम कैटलॉग्स मंगाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो ही शुड हैव द फुल नॉलेज अबाउट द परचेस सिस्टम. सेकेंड है स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल. जो भी मार्केट के अंदर स्पेसिफिकेशंस के हमारे जो रिक्वायर्ड मटेरियल हैं उसके पूरे स्पेसिफिकेशन उसके पास में होने चाहिए और वो किस जगह पे किस मार्केट में किस प्राइस पे मिलेगी वो भी पता होना चाहिए. सो थर्ड इज़ द लेटेस्ट एंड अप टू डेट मार्केट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. वो अपने आप को अप टू डेट रखे कि मार्केट के अंदर लेटेस्ट और किस प्राइस के ऊपर मटेरियल अवेलेबल होता है. फोर्थ है लेटेस्ट प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइसेस. वो मार्केट की नॉलेज उसको होनी चाहिए कि सामान जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो कितने अमाउंट का पूरे प्रोजेक्ट के लिए लाई करेगा. एंड फिफ्थ है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट. जो भी प्रोजेक्ट की लेबर कॉस्ट होती है, मटेरियल की कॉस्ट होती है, वो उसको परफेक्टली कैलकुलेट करे जिससे जो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो पता चल सके. इसके अलावा लास्ट पॉइंट है कि एनी अदर कॉस्ट के अंदर कुछ कॉन्टीजेंसी चार्जेज होते हैं, सुपरविज़न चार्जेज होते हैं या कैजुअल खर्चे हो जाते हैं जिनको भी वो कंसिडर करके चले. ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं. तो ये अदर कॉस्ट्स होती है, वो भी हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है उसके अंदर ऐड करके हमको पता होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट इसकी कहाँ तक वेरी करेगी. इसके बाद में इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की वायरिंग के लिए और किसी भी जॉब के वायरिंग या किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और मटेरियल होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सिंपलेस्ट वे ऑन ए ड्राइंग इज कॉल्ड सिंबल. हम वी कैन से दैट द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द electric equipment or instrument is known as the electrical symbols. In electrical engineering, drawing commonly graphical symbols are employed to denote the name of electrical component and instruments. मतलब हम हमारी जो वायरिंग होती है उसके अंदर जो सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, मटेरियल लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उनको लेआउट डिज़ाइन के अंदर एक सिंबल से डिनोट करते हैं. उसी को हम इलेक्ट्रिकल सिंबल कहते हैं. इससे जो हमारा लेआउट प्लान होता है वो इजीली समझा जा सकता है. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है. तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल कुछ इस लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं. आप देख सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट करंट होता है उसको हम सिंपल एक बार से डिनोट करते हैं कि ये डीसी करंट का सिंबल है. सेम थिंग फॉर अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट साइन वेव की तरह आउटपुट आता है उसका, तो उसका सिंबल हम साइन वेव की तरह बना लेते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स इसके अंदर दिए हुए हैं. आप देखें तो जैसे सिंगल फेज 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई को लिखा है हमने 1 और एसी है 50 हर्ट्ज़, और जैसे 3 फेज है तो 3 साइन वेव 50 हर्ट्ज़. ऐसे हम सिंबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल सोर्सेस और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट, this is the again the listing of the symbols.
जिसके अंदर टर्मिनल एंड कंडक्टर्स को दिखाया है, सर्किट ब्रेकर्स को दिखाया है, अर्थिंग को दिखाया है, फॉल्ट को दिखाया है, वाइंडिंग दिखाया है और रेजिस्टेंस को दिखाया है, इम्पीडेंस को दिखाया है, इंडक्टेंस को दिखाया है, कैपेसिटेंस को दिखाया है। तो ये सिंबल्स इसके अंदर दिए हुए हैं जिनसे हम इसको सिंबल्स को डिनोट करते हैं। इसके अंदर ट्रांसफार्मर दिखाया है, ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाया है, मोटर दिखाया है, मोटर की कनेक्टिंग को दिखाया है। और नेक्स्ट है कि जो 1 वे स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है, 2 पोल स्विच है, 3 पोल स्विच है, सॉकेट्स हैं, लैंप्स हैं, सीलिंग फ़ैन है, एग्जॉस्ट फैन है, वैकेट फैंस हैं, अर्थिंग है। ये सारे सिंबल्स हम हमारी जो वायरिंग होती है उसके अंदर यूज़ में लेते हैं। लास्ट में जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, जर्नल हो गया, हीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, ऑन को ऐसे दिखाते हैं, बजर हो गया, बेल, सिग्नल लैंप हो गया, सायरन हो गया। तो these are the some important electrical symbols which have been used in the electrical wiring. Thank you.